Hello and welcome back. In last video, as we completed our Titanic project, over there I have done the one mistake over there. That cabinet df.cabinet, we have the a null value of 687. So in last video I have dropped all of them. Because of that, around 687 rows are dropped from the full data set, and we only remaining with 183. So in this video we are going to cover all of them. And the first thing is that uh, I have not dropped all of the NA value. What I have done here, I have replaced with median value. So we'll start again and we do the same thing. But in this video, I'm also going to show you how to means I have created the Flask API and will deploy. And also I have created a HTML page, not a HTML page, HTML, and I have given the CSS to it, so we can give the value and we can predict over there, is he survived or not. So we'll start over here. Now I know for first time it takes time. Now we'll go further. Just reading the value is NA value. We'll checking the NA value. Then we'll taking the first five head. After that, we'll start with df.embark, and embark will count the value count. So we'll get the value count. After that, we'll go for a shape. We have the 91 of rows, and the columns are 12. So here, uh, in a six column, we have like male and female. So one for male and zero for female, as we use. Uh, then we use the info. After that, we use the filna. Here I have done the filna. Filna is used fill na values. So wherever the na in the column will replace with c, because we have the uh, over here in the cabin column we have uh, the initial start with c or more, so we'll replace with the c value, because I don't know what to do with n value. So I just, some people may drop the entire column, but I have kept it. And one more thing I have not done in this video is that uh, I have not removed the passenger ID, because it is not needed to take over here. और in this video I'll make sure कि हम drop कर देंगे उसको. Further that will use the embark again, and will replace with 1 2 and 0. 1 for S, C for 2, and Q for 0. And then again I have used uh, check here that after filling up the value, we have the same rows with the original data set. So now you can see here, these are the thing we have done yesterday only. So I'm going to do one thing, or what we can do, we'll keep it at it is, or I have to change. I have to do some changes over there. Let's do it. No problem. I'm ready to do in this video only. No problem. We'll delete the passenger ID column. Delete. I have deleted that one. Now we have those columns. Then we have replace, then head. These are the thing I have completed yesterday in yesterday's video. You can see here I have created one function replace with initial letter. So in one column we have uh, over here you can check like C. It start some started the cabin column rows start with C value C85 D A. So we replace with initial value. I have created one function by using the OpenGPT, and you can also use that uh, for that. So or I can show you over here just by opening OpenGPT. Let's see, check. You can check over here. Maybe it is.
Let's see, replace with, uh, here you can see, replace with NA value. Is that no, oh, maybe this, not this one. uh, can Okay, it's not. I think I've done yesterday only. Or you can just create just by using like new chat, and you can go here and you can just write, like, I'll show you first. Df dot abby, and the values we have, like unique values, unique. So we get all the unique value over here, and after copying this much of data, because you can copy entire, but वो फिर बहुत टाइम लेता है for processing. uh, Write create create function, create function function replace replace initial initial letter with, replace initial letter with create function, replace initial letter with initial letter initial letters. Okay. See, actually, I have just created by using only ChatGPT. You can see here. Let You can see here that it started writing that function, and if you put that column in it, it will automatically replace that initial value by using this. Now it given this different solution for that, but I have used the different one that it created previously. So here the string is the column we have given. So what we do, we by using a string, we df dot cabinet, we transfer uh, all the values in the string, and then we provide the string and the letter with initial value. So it will automatically check and replace with initial value. So you can also create by using a chat gpt. It is very useful to uh, take advantage of such a system. So I have done, and after that we'll go for again df.info, and I have replaced dot later. I have used that function and replace all in the column. You can see here in the cabin, it replaced with initial letter. After that, we'll do the again value count, and you'll get the C as the most count, because I replace the nan values with C. So now, so we'll go up. I have already done. Like here, I have, and also in the age column, we have some non values. What I have done, from age, I have generated the median value, and then after that, I have replaced the median value with nan. Means जहाँ जहाँ पे nan है ना, तो उसको median value से replace कर दिया by using the fill na. So I've done with age, also with embark. Also embark में भी दो वैल्यू थी जो मैंने रिप्लेस कर दी by by replacing one. Okay. After that, यहाँ पे ये जो पैसेंजर डाला है ना, I have to remove that because we don't have a passenger in our column. तो maybe ये लेगा नहीं. Let's see. Now it is taken because we don't have that column. So that will go for, let's see. I know it is taking more time. I don't know why, but it's taking time. Let's.
तो यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट कर लिया है. ओके, इट इज कंप्लीटेड. नाउ विल चेक द एक्यूरेसी कितना आता है. Here you can see our accuracy is 85. So that's totally means अच्छा accuracy आ गया. In last video we've seen that we have accuracy of 75. So we have means we have done the good changes that create. So ये calibration classification report हमने generate किया है. After that I have taken the first row and I have predicted by using the first row. Now here what happened, we have to remove the first thing because we have removed. Now you can see here 1. After putting the value in the prediction, you can see the survival is actually a 0. Oh, sorry, I need to. Oh, actually it is a first row and I have not taken the same row. If I put the same row, then I'll get the same. Okay, we'll check that. What I do, I just go and df dot head here. Uh, if I put these values, you can see here. Survival is 1, but I am not going to put the survival. We'll start with P class. So our P class first row. You can check the first row, and I'm putting the same value. P class is 1, then sex is 0, then age is 38. I'm putting the that row first row, and I'm predicting the survival is 1, means he's surviving. So I'm getting the same over here. So uh, our model is predicting accurate value. After that I have generated the column, so I'll do the same because one column is removed. And I'll start with pickle file. Pickle is for reading and reading the value, binary value, and writing also binary value. एक फाइल में वो जनरेट कर लेता है और उसको हम CSV फाइल जनरेट कर सकते हैं, JSON फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसमें डम कर सकते हैं. तो आई हैव क्रिएटेड वन फाइल pickle file model.pickle, and that file I'm going to use in a py app.py में यूज करने वाले हम वो. So let's go. I've created the Flask. Over here you can see from Flask I am importing the Flask request and random template. I also imported the pickle file. With open I am reading the all the values that I have given. uh, Actually we are reading the value and then we are pasting the value over there in the prediction. So we are doing the same, means we are reading over here, we are reading the value. Okay, then I use I've created the app is equal to flask underscore name underscore, then at the rate app dot route कर लिया हमने first page पे. And I have created one फंक्शन कॉल्ड इंडेक्स एंड रेंडर टेम्पलेट से उसको मैंने एक पेज पे चले गया. तो अभी ये इंडेक्स नाम का हमने टेम्पलेट में जाओगे तो आप यू कैन सी हियर I have created one folder called template and you have to create the same folder for that. So I have created the same folder and then मैंने एक index.html पेज क्रिएट किया ओवर देयर. देन अगेन आई हैव क्रिएटेड इंडेक्स पे मैंने और एक चीज क्रिएट की है, वो है टाइटैनिक का डेटा. सो जो हमारा टाइटैनिक का डेटा है वो हम वहाँ पे रेंडर करने वाले. तो जो जब आप पेज देखते हो ना, इफ यू गो हियर एंड सी, ये भी चार्ट ओपन हो चुका है. तो ये मेन पेज जाएगा. इफ यू, ये मेन पेज पे चले गए. अब ये चार्ट के पेज पे आ चुका है. इफ दे हैव डिफरेंट पेज तो ये व्हीकल डालूंगा तो व्हीकल वाला पेज ओपन हो जाएगा. लाइक वाइज तो हमारा भी वैसे ही होने वाला है, सेम सेम लाइक दिस. तो गो ओवर हियर. तो ये राउट करेगा कौन से पेज पे, टाइटैनिक पे पेज पे. तो वही हमने ये कर लिया. और मेथड कौन सा है, पोस्ट और गेट. पोस्ट और गेट इसलिए यूज करते हैं कि कुछ डेटा मैं डालने वाला हूँ तो वो मुझे मिलना चाहिए और सिक्योरली मिलना चाहिए, तो हम गेट यूज करते हैं जब कुछ पासवर्ड वगैरह होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी टाइप की डेटा होता है ना, लाइक पासवर्ड या कुछ हम इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि किसी को दिखना नहीं चाहिए. तो वो उस डेटा के लिए हम गेट यूज करते हैं और पोस्ट भी यूज करते हैं फॉर पुटिंग द वैल्यू, मीन्स जब वैल्यू हम लिखते तो. ओके, सो विल गो फर्दर एंड आई हैव क्रिएटेड द फंक्शन कॉल सर्वाइवल. तो उसमें हमने क्या कर दिया, जो भी हमारा जितने भी, अभी ये पैसेंजर वाला है ना, तो वो हमें
यहाँ से मैं निकाल दूंगा या इसको कमेंट आउट कर दूंगा बिकॉज आई हैव डिलीटेड दैट कॉलम। सो उसके बाद जितने भी कॉलम्स थे ना उसको हमने यहाँ पे ले लिया, और हम ये रीड करने वाले कहाँ से, एक सर्वर एक पेज से रीड करेंगे और उसको हम अपने मॉडल को देने वाले फॉर प्रिडिक्शन। ओके, तो वही हमने यहाँ पे किया है। लाइक यू कैन सी हियर पी क्लास। तो आप यहाँ पे जाओगे तो हमने यहाँ पे जो जितने भी थे ना वो उतने ले लिए, लेकिन सर्वाइवल नहीं लिया बिकॉज हम सर्वाइवल क्या करने वाले, प्रिडिक्ट करने वाले, तो सर्वाइवल देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो पी क्लास 6 एज सिबलिंग पेरेंट चाइल्ड फेयर कैबिन और इम्बार्क, ये सब हमने एक रीड करने वाले वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, और हमको वो प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये बंदा सर्वाइव हुआ है या नहीं हुई है, ये बंदी सर्वाइव हुई है नहीं हुई है। तो ये प्रिडिक्शन मॉडल जो हमने यहाँ पे जो मॉडल डॉट फाइल जो हमने रीड किया लिया था उस पे हमने प्रिडिक्शन चला दिया, और प्रिडिक्शन में हमने जितनी भी वैल्यूज थी, जो 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 वैल्यूज हम पुट आने वाली है वेब पेज से, वो हमने इसमें डाल दिया, और एस एस डॉट एस एस में हमने एस एस में स्टोर कर लिया, और ये एस एस वाला हमने सर्वाइवल को दे दिया आउटपुट में। रेंडर डॉट टेम्पलेट मतलब उस टेम्पलेट पे जाके इंडेक्स इंडेक्स जो एचटीएमएल पेज बनाया है उस पे जाके वो रेंडर करेगा, और फिर वहां पे सर्वाइवल जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहां पे ये एसएस वाली वैल्यू हमें वहां पे दिखाई देगी। और ये हमने डिबग जो ऐप डॉट डिबग इसलिए डालते हैं, रन ऐप डॉट रन इन ब्रैकेट डिबग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जितने बार हम कभी यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे डिबग चेंजेस हो जाएंगे। हर टाइम को हमें चेंजेस करने के बाद क्या बोलते हैं उसको, राउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम इसमें चले जाएंगे क्या, अपना इंडेक्स जो हमने एचटीएमएल पेज बनाया वहां पे, तो ये जो हेड में लिखा है वो मैंने सीएसएस लिखा है, वो आपको जानकारी अभी लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट कि इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूं, तो यू कैन कमेंट आउट बिलो, आई विल मेक वन गुड वीडियो ओवर देयर। बट ये भी मैंने सब नेट से ही कॉपी किया है, मैंने किधर से तो भी एक पेज देखा और वहां से मैंने ये कुछ चीजें कॉपी किए, कुछ ओपन जीपीटीपी से थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है, और बहुत सारी स्टडी करके मैंने ये बनाया है। लाइक एक ही जगह से कॉपी नहीं कर पाया सब। तो ओके, देन फिर इसमें मैंने क्या कर लिया, एक आपको ये एचटीएमएल पेज बनाना होगा, तो या ये कोड चाहिए तो मैं लगे तो गिट गिट पे, हाँ अभी गिट हब पे भी हम डालने वाले, गिट बैश से हम गिट हब पे ये मैं कोड पुश करने वाला हूँ, तो आपको वहां से ये कोड मिल भी जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गिट के रिगार्डिंग भी बहुत कुछ पढ़ने वाले, तो स्टे ट्यून और देखते रहिए वीडियो को, तो आपको पता चलेगा क्या कर रहा हूँ। और ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें एक्चुअल में। ओके, और देखेंगे आगे क्या क्या करता है, बट इन दिस वीडियो बॉडी में हमने क्या कर लिया, एक डिव क्रिएट कर लिया। डिव क्या होता है पता है, कि एक डिवाइडेशन का काम करता है, कि ये डिवाइड कर रहा है, ये इतना उसके लिए ये इतना इसके लिए। क्लास इसलिए यूज करते हैं कि क्लास देके हम ऊपर उसके लिए सीएसएस अप्लाई करना है, या बैकएंड में कुछ काम करना है इस पे, तो कुछ रेफरेंस चाहिए। लाइक मेरा नाम है कुछ, मेरा नाम शुभम है या गौरव है या मेरा नाम आदित्य है, लेकिन एक क्लास में आदित्य नाम के बहुत बंदे हो सकते हैं, एक क्लास में गौरव नाम के बहुत बंदे हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर ये यूनिक होता है। उसी तरह से एक क्लास होता है ना, ये यूनिक होता है हर एक चीज के लिए। तो ये अभी मैं ये रेफर करूंगा बैकएंड में, मुझे कुछ चलाना है, उस पर क्वेरीज चलाना है या कुछ सीएसएस लगाना है, तो उसके लिए यूज करूंगा। लाइक यहाँ पे क्लास देके मैंने उसको नाम दे दिया, और यहाँ पे ऊपर मैंने उस पर सीएसएस चला दिया, तो दैट्स इट। उसके लिए हम क्लास यूज करते हैं। ये हेडर है, H1 हेडर मतलब सबसे बड़ा वाला हेडर होता है, तो वो मैंने उसमें लिख दिया प्रिडिक्शन ऑफ सर्वाइवल ऑफ टाइटैनिक्स। तो ये मैंने कुछ लिख दिया उसमें, और उसको बोल्ड कर दिया, बी यानी बोल्ड कर दिया H1 देके। तो ये H5 S6 तक होता है, हेडिंग है ना S6 तक होती है, और उसका विड्थ है ना कम कम होते जाता है। इफ यू यूज द फर्स्ट वन उसका विड्थ ज्यादा होता है। तो हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, जैसे हम किसी पेज पे जाते हैं ना, लाइक आप कभी एच डी एफ सी पे जाते हैं हम, लेट्स सी एच डी एफ सी बैंक पे जाते हैं, तो लेट मी ओपन द पेज। तो ये यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि लॉग इन करना है मुझे, तो लाइक अभी मैंने इस पे बोल दिया इंटरनेट, तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, मुझे कुछ पूछ रहा है ना, लाइक यूजर आईडी क्या आपका पुट करो देन कंटिन्यू होगा। उसी तरह से हमें एक पेज बनाना है लाइक वाइज, तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये फॉर्म है, वो फॉर्म में हम डिटेल भरेंगे और अपना एक प्रिडिक्शन आएगा।
तो जैसे लॉग इन करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, उसी तरह से ये मैंने बनाया है लाइक वाइज। तो यहाँ पे लेबल दिया है पैसेंजर आईडी, जो पैसेंजर आईडी है उसका। तो टाइप में वैल्यू दे दिया है, इनपुट लेना है और टाइप में हमें क्या देना है, वैल्यू दे देना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया है। न्यूमेरिकल ले रहे हो तो आपको इसमें जाके जो मैंने यहाँ INT लगाया है वो निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर्स दे सकते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया है, बिकॉज वैल्यू कौन से भी वैल्यू ले लेता है, लाइक फ्लोट भी ले लेता है, कुछ भी ले लेता है। तो इट्स गुड टू यूज द सिंगल वैल्यू, नाम से यूज करो। और इसमें नाम दे दिया पैसेंजर आईडी। तो ये रेफरेंस के लिए होता है, लाइक ये जो नेम डाल रहे हो आप एकदम करेक्टली डालना है, या कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे जब डाल रहे हो तो, बिकॉज ये और ये मैच होना चाहिए। लाइक अभी हियर आई हैव डिलीटेड दिस वन, तो यहाँ पे भी हम ये ना कमेंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द पैसेंजर आईडी, तो कमेंट आउट हो जाएगा। सो वी हैव अ प्री क्लास 6 एज सिबलिंग्स, एंड ये मैंने सब क्रिएट किया है। यू कैन सी हियर इनपुट और लेबल, लेबल यानी एक लेबल लेबल देता है लाइक। और हियर हमने जैसे कि देखा यूजर आईडी, वो यूजर पासवर्ड और लॉगिन, वो क्या है, एक लेबल है। तो ये लेबल क्रिएट कर लिया, और उसमें इनपुट कुछ पुट कर रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे, लाइक मेल एड्रेस पूछ रहा तो आप मेल एड्रेस डालोगे। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हो आप, कुछ ईमेल लेना है तो ईमेल भी आता है, ईमेल भी ले सकते हो। वैल्यू तो वैल्यू ले गए, अब हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे टाइप को। और प्लेस होल्डर इसलिए होता है बिकॉज प्लेस होल्डर आपको बताता है कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना है। लाइक इफ आई वॉन्ट टू, I have given the two input boxes, and I don't know what to put over there. So placeholder हमें बताता है कि what to put over there. Like login है तो वहाँ पे एक ID पुट करना है, पासवर्ड है तो नीचे पासवर्ड पुट करना है, तो ये एंटर पासवर्ड ऐसे उसमें वो प्लेस होल्डर में। लाइक आई एम गोइंग टू शो यू द, मैं आपको बताने वाला हूँ वेब पेज कैसे हमने कैसे बनाया है वो फ्लास्क वाला एपीआई, तो आपको दिखेगा ही। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये रिक्वायर इसलिए लिखा है बिकॉज इफ समवन नॉट पुट द स्पेसिफिक वैल्यू, तो वो कुछ कोड फाड़ नहीं देगा, मतलब कोड फट नहीं जाएगा, और कोड नहीं फटेगा तो बेटर रहेगा। या मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं डाला ना, तो कोड फट के वो आपको एक कुछ तो भी एरर दे देगा, और यूजर को एरर दिखेगा, तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिया, जिससे उसको ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, या उसको कुछ मैसेज आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको पता होगा ये रिक्वायर्ड क्यों डाला है मैंने यहाँ पे। BR यानी नेक्स्ट नेक्स्ट पिच नेक्स्ट, कभी कभी हमें नेक्स्ट लाइन पे लेना होता है ना, तो उसके लिए BR यूज करते हैं। ब्रेक ब्रेक द लाइन, वो ब्रेक वाला है। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया। बटन लिया है, बटन इज फॉर सबमिट सम, यहाँ पे आप इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बटन लिया है बिकॉज वी आर यूजिंग द बटन। नॉट अ बिग डिफरेंस इन बटन एंड इनपुट, होगा भी तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट बटन हमने इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लास दे दिया BTN, तो हमने यहाँ पे ऊपर CSS लगा दिया। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन CSS इन दिस वीडियो। सो और यहाँ पे जिंजा में लिखा है कुछ इफ एल्स वाला स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा। सो वी हैव क्रिएटेड, सो विल गो फॉर, अभी हम वहाँ पे जाके ना डायरेक्टली प्रिडिक्ट करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और हमारे डायरेक्टरी में जाएंगे। ओ ओ सॉरी, ये मैं डायरेक्टरी में चले गया। देन विल यूज पाइथन ऐप डॉट py, लेट्स सी। जय भोलेनाथ जय शंकर, ओपन हो जाए। अरे हो गया हो गया हो गया। लेट्स सी, गो ओवर हियर। जैसे ये पेज मैंने बनाया है, इसमें कुछ इमेजेस वगैरह भी डाला है। तो ये CSS वाला पार्ट है। CSS कुछ नहीं होता है, लाइक मेकअप वाला पार्ट होता है ना, तो CSS होता है कि मैंने बैकग्राउंड में इमेज डाल दिया। ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन वाला, इसमें बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पे देखो, आपको ये आ रहा है पीछे में एंटर पैसेंजर, तो वो क्या था, प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर में डाला था मैंने, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। और इफ आई यहाँ पे मैं वैल्यू पुट नहीं कर दूं ना, यहाँ पे चलो प्लीज फिल आउट द वैल्यू, वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज मैंने रिक्वायर्ड डाला था। नहीं डालता तो यहाँ पे वो कुछ डालता नहीं, और आपका आप जब प्रिडिक्शन दबाते तो वो कोड फट जाता। तो इट्स अ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस कि आप डाल दो। अभी हम एक काम करेंगे, हम एक रो उठा लेंगे, लाइक इसमें से एक रो उठाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये जो सर्वाइव हुआ है ना ये बंदा, उसकी रो उठा लेता हूँ। ठीक है, 110, तो हम सर्वाइव तो नहीं लेंगे, प्लेस 1035, तो हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, लाइक 10, 1 सॉरी 1
पैसेंजर आईडी तो नहीं है हमारे पास, तो ये पैसेंजर आईडी क्यों बता रहा है? लेट मी गो एंड चेक द कोड। कुछ चीज़ें सेव नहीं हुई है, सो आई गो अगेन ऐप डॉट पी वाई पे। तो ये पैसेंजर तो मैंने ये कर दिया है। एच टी एम एल में क्यों नहीं हुआ पता नहीं यार मुझे। हाँ, इसको डिलीट ही कर देते हैं, लेट्स सी। ये डिलीट हो जाएगा तो बेटर रहेगा मुझे लग रहा है। I'm saving this data, and also I'll go here and save this one, and again we'll run this because I have done some changes in HTML file, तो उसके लिए। ओके, ये हो चुका है। We'll go again on browser, we'll try to refresh that। हाँ, now here you can see जो passenger ID था वो चले गया। Now we'll put the our values, like I'll go on। So we'll start with P class, and the third row, not start with थर्ड वाला, ये वाला। हाँ, तो P class is 11035। Let's put this value 1035, and we'll go again code 1035 1053 1 10 3 1 and 1। so let's predict क्या आता है। यहाँ पे survive आ गया है, so we'll go and see। तो हियर यू कैन सी 1 आया है, 1 यानी सर्वाइव्ड एंड 0 यानी नॉट सर्वाइव्ड। तो यू कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ, मतलब ये आप भी बना के देख सकते हो। और आपको यहाँ पे जिंजा वाला प्रोग्राम दिखाता हूँ। लाइक हियर यू कैन सी 1 इक्वल टू सर्वाइव्ड एंड 0 इक्वल टू नॉट सर्वाइव्ड। तो ये जिंजा में लिखा है, बिकॉज HTML में आप पाइथन वाला प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो ये जिंजा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो आपको यूज करके आप HTML में थोड़ा सा पाइथन वाला कोड लिख सकते हो। तो आई हैव डन दिस ओवर हियर। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन सी दिस लुक्स वेरी गुड। आप जब आपके गिट में ये प्रोजेक्ट रखोगे, तो और जब आपने इंटरव्यू में बताओगे कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था, तो इंटरव्यू पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको मोस्ट आर द चांसेस यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर दैट। तो स्टे ट्यून, subscribe to my channel because it really helped me and motivates me. So share with your friend if you like this video, and if you have any query or any doubt, comment down below. Thanks for watching this video.